ملک اختر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ گزشتہ 7-8 روز سے وہ مسلسل اس شاپنگ پلازا کے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ اس کی لڑکپن کی عادت تھی۔ اس نے کالج کیسے پاس کیا، اعلیٰ سول سروس کا مارکا کس طرح سر کر لیا، یہ ایسے سربستہ راز تھے جن پر ملک میں ہونے والے بہت سے دوسرے گھپلوں کی طرح پردہ ہی پڑا رہا۔ اس کا باپ اور اس سے پہلے دادا پر دادا بھی اعلیٰ آفیسر رہے تھے۔ انگریزوں کے بعد کالے انگریزوں کی غلامی نسل در نسل انہیں منتقل ہوتی آئی تھی۔ اس کے والد نے میٹرک کے بعد کبھی اسے دل جمعی سے پڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ ہر امتحانی مرکز پر پہلے اس کے خیر مقدم کے لیے اس کے والد کے محکمے کے ملازمین موجود ہوتے۔ انہوں نے اختر ملک کو میٹرک سے اعلیٰ سروس کے امتحان تک ہمیشہ اعلیٰ نمبروں سے کامیابی دلائی۔ ملک کی ہر کمزور، شریف اور غریب لڑکی پر وہ بلا شرکت غیر اپنا حق سمجھتا تھا، اور متعدد مرتبہ اس سلسلے میں اسے تھانے کا منہ بھی دیکھنا پڑا، لیکن ہر دفعہ معاملہ تھانے میں ہی ختم ہو جاتا، کبھی کورٹ کچہری تک نہ گیا۔ اسے ایمان کی حد تک اس بات کا یقین تھا کہ اس ملک میں رشوت اور کرپشن کے ذریعے ہر ناممکن بات کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، جس کی زندہ مثال وہ خود تھا۔ اس بڑے شہر میں اس کی پوسٹنگ سے اسے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ یہاں اسے زیادہ حرام کاری کے مواقع ملیں گے، اور اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی جنسی بے راہ روی کے لیے بھی یہاں تسکین کا زیادہ سامان موجود ہے۔ سانولے رنگ کی اس عورت کو جسے قدرت نے کسی سانچے میں ڈھال کر اس دنیا میں اتارا تھا، وہ گزشتہ 4-5 روز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکاری آنکھوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس لڑکی کے پاس اسے دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس کی چال ڈھال اور انداز نشست و برخاست اس امر کا غماز تھا کہ اسے بھی ملک اختر جیسے لوگوں کی تلاش ہے۔ پروین سے پہلی ملاقات نے ہی اسے کامیابی کا یقین دلا دیا تھا۔ 3-4 ملاقاتوں میں دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف ہو گئے، اور ایک روز وہ بھی آیا جب پروین نے اختر ملک کی جنسی ہوس کو تسکین بہم پہنچا دی۔ اس روز کے بعد تو ملک اختر اس کا بندہ بے دام بن کر رہ گیا۔ اس کا تعلق خفیہ پولیس کے جس محکمے سے تھا، اس کا کام غیر ملکیوں کی نقل و حرکت پر قیام پاکستان کے دوران نظر رکھنا اور بھارت میں موجود پاکستان ہائی کمیشن میں ویزا کی درخواست دینے والوں کے کیسوں پر نظر ثانی کرنا تھا۔ دلی کا پاکستانی سفارت خانہ بیشتر ویزے اختر ملک کے محکمے کی سفارشات کے بعد ہی بھارتی باشندوں کو جاری کرتا تھا۔ ایسا گدھا میناکشی کے ہاتھ کیا لگا، اس کے لیے تو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اس نے را کے لیے بہت بڑا مارکا سر کیا تھا۔ وہ 2-3 ماہ میں اختر ملک جیسے جنسی مریض کے دل و دماغ پر قبضہ جما چکی تھی۔ اس نے اختر ملک کے لیے اپنا وجود ناگزیر بنا لیا تھا۔ ہر دوسرے-تیسرے روز اختر ملک کو شدت سے جسمانی ہوس کی تسکین کے لیے اس کی طلب محسوس ہوتی تھی۔ اختر ملک کو زمانہ طالب علمی سے شراب نوشی کا چسکا لگ گیا تھا۔ اس شوق میں نوشی کو مزید ہوا پروین کی ملاقاتوں نے دی۔ پہلے وہ مہینے میں 1-8 مرتبہ شراب پیتا تھا، اب ہفتے میں 2-3 مرتبہ پینے لگا۔ میناکشی نے پروین کا روپ دھار کر را کے لیے یوں تو بہت سے کام کیے تھے، لیکن اختر ملک کو تسخیر کر کے وہ سب پر بازی لے گئی تھی۔ اس نے اختر ملک کو پہلے جسمانی ملاپ کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے خاندان کے صرف 2-3 افراد ہی یہاں رہتے ہیں، باقی بھارت کے شہری ہیں، اور اب تک وہ 5-6 ایسے بھارتی شہریوں کے لیے اختر ملک کی مدد سے مناسب سہولتیں بھی حاصل کر چکی تھی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر اپنے 2 بھائیوں کے قیام کو قانونی شکل دے چکی تھی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ان بھائیوں کے ذریعے ایک خطی رقم بطور رشوت ملک اختر تک پہنچائی۔ جب اس نے میناکشی سے کہا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، تو اس نے ملک اختر کی باہوں میں جھولتے ہوئے کہا، محبت اپنی جگہ اور بزنس اپنی جگہ۔ میں جانتی ہوں ملک صاحب کہ آپ کو بھی اوپر والوں کا منہ بند کرنا ہوتا ہے۔ دراصل ہم سب ایک بڑے سیٹ اپ کے درمیانی پرزے ہیں۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ جب اوپر والے بھی کھا رہے ہیں، نیچے والے بھی کھا رہے ہیں، تو درمیان والوں کو کون پوچھتا ہے؟ ملک اختر نے کہا، ٹھیک ہے پروین، لیکن میں اپنی ضرورتیں اور کئی جگہ سے پوری کر سکتا ہوں، کم از کم تمہارے حوالے سے کوئی کام کرتے ہوئے مجھے۔ میناکشی نے اس کے بعد کاٹتے ہوئے کہا، ملک جی آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ جن لوگوں کا کام آپ نے کیا ہے وہ بھی کوئی صوفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ بھی ہزاروں دیگر لوگوں کی طرح اسمگلنگ کے دھندے سے لگے ہیں۔ انہوں نے بھی لاکھوں کمائے ہیں، ان میں سے چند لاکھ آپ کو مل جائیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ میناکشی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی تربیت کے مطابق ہوا میں تیر چلایا، لیکن خلاف توقع عین نشانے پر۔ ملک اختر کی رال ٹپک پڑی۔ پیسہ اس کی خاندانی کمزوری تھی۔ وہ تو نہ جانے کب سے کسی ایسے گروہ کے چکر میں تھا جس سے ڈیل کر کے وہ ایک ہی مرتبہ اپنا مستقبل محفوظ کر لے۔ 20-50 ہزار کی رشوت لینا اب اس کا لیول نہیں رہا تھا۔ اس نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ان تمام خوابوں کی تعبیر بھی اسی ہیرا پھیری اور بے ایمانی کے ذریعے ممکن ہوتی جس کے ذریعے وہ اس اہم منصب تک پہنچا تھا۔ اس کے باپ نے رشوت سے کروڑوں کی جائیداد بنائی تھی، اور کوئی اس کا بال بھی نہ کر سکا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پر پلتا رہے گا؟ اس نے سوچا اور خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اب اسے خود پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔
बेचारे वालिद साहब पर आखिर कब तक बोझ बना रहेगा। उसके दादा ने अंग्रेजों की टाउटी से जो दौलत कमाई थी उसमें 10 गुना इजाफा उसके बाप ने किया था। वो तो तीसरी नस्ल था। उसने सोचा कि उसे तो 100 गुना इजाफा करना चाहिए। अफरात ज़र भी तो उसी रफ्तार से हुआ था, महंगाई भी तो उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। परवीन की सूरत में तो जैसे अलादीन का चिराग उसके हाथ लग गया था। उसके जरिए अख्तर मलिक को क्या क्या तस्कीन के सामान मयसर नहीं आए थे। एक नशा सा उसके हवास पर मुसलसल छाया रहता था। उसकी सोहबत की खुमारी ने अख्तर मलिक को मखमूर कर रखा था और अब वो उसके लिए दौलत के अंबार भी इकट्ठे करने जा रही थी। उसे समझ नहीं आती थी कि अपनी इस अजीमुशान महबूबा को उसके शायान शान ट्रिब्यूट किस तरह पेश करे। उसने अपने बाजुओं का हल्का रॉ की हराफा के गिर्द तंग करते हुए कहा, परवीन तुम वाकई मेरे लिए किसी आसमानी तोहफे से कम नहीं हो। तरबियत याफ्ता मीनाक्षी ने उससे ज्यादा गर्म जोशी का मुजाहरा किया और तुम मेरे लिए। मीनाक्षी ने तभी अंदाजा कर लिया था कि मलिक अख्तर उसके जाल से बचकर नहीं जा सकता। अब उसे मलिक अख्तर को अपना बंदा बेदाम बनाना था और उसे किसी ऐसे जाल में फंसाना था जिससे बाहर निकलना फिर जीते जी मलिक अख्तर के लिए मुमकिन न रहे। और उसने ये सुनहरा जाल भी एक रोज अख्तर मलिक पर फेंक ही दिया। उस रोज अख्तर मलिक शबाब और शराब के नशे में धुत उसके पहलू से चिमटा हुआ था जब अचानक ही मीनाक्षी ने इंकिशाफ करते हुए कहा, तुम्हें इल्म है मेरे जिस कजन की तुमने सिफारिश की थी वही जिससे हमने 2 लाख रुपए लिए थे? मलिक अख्तर ने बेचैनी से पूछा, हाँ क्या हुआ उसे? उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, देखो मलिक, उसने भी जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे हैं तुम्हारी तरह। जब से हम दोनों मिले हैं मेरा दिल कहने लगा है कि हमें उन ख्वाबों की ताबीर जरूर मिल जाएगी। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो लोग क्या बिजनेस करते हैं। उन्होंने मुझे एतमाद में लेकर कहा है कि अगर हम दोनों चाहें तो वो लोग हमें दिनों में करोड़पति बना सकते हैं। अख्तर तुम जानते होगे इस शहर में असलहे की स्मगलिंग का धंधा आम चल रहा है। वो जो है ना, वो तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, शायद वो उस ग्रोह का सरगना है। और तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि तुम्हारे कौन कौन से अफसर उनसे मिले हुए हैं। ये कहते हुए उसने 3-4 ऐसे अफसरों के नाम ले दिए कि मलिक अख्तर को अपना नशा हरन होता महसूस हुआ। उसे इस बात का इल्म तो था कि ड्रग माफिया, असलहे के स्मगलरों का धंधा उसके महकमे के ताउन के बगैर नहीं चलता, लेकिन जिन अफसरों के नाम परवीन ने लिए थे क्या वो भी? इससे आगे वो कुछ ना सोच सका। एक बात का तो उसे इल्म था कि उस तनख्वाह से जो उन्हें दी जा रही है कोई भी बाल बच्चेदार शख्स सिर्फ अपनी सफेद पोशी ही कायम रख सकता था। ये आए रोज गैर मुल्की तफरीही दौरे और वो भी अपने अहलो अयाल के समेत दुनिया के महंगे तरीन होटलों में कयाम और अय्याशियां। ऐसी बातों का तसव्वुर भी कोई तनख्वाहदार शख्स नहीं कर सकता था। उन लोगों की अय्याशियों और बदआमालियों का इल्म आला हुकाम को रहता था, लेकिन कोई उन्हें नहीं पूछता था। माशरे में उन्हें मुअज़्ज़ज़ मकाम हासिल था। किसी की मजाल नहीं थी कि उनकी तरफ उंगली उठाकर कोई बात ही कर सके। तंजीम से मुताल्लिक उसे कोई खुशफहमी इस सर्विस में आने से पहले कभी नहीं रही थी। उसके बावजूद उन लोगों के हुकूमत वक्त से बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे। मीनाक्षी ने भरपूर जिनसियत का मुजाहरा करते हुए कहा, दरअसल वो लोग तुम्हारे हुस्न सुलूक से बहुत मुतासिर हुए हैं। तुमने आउट ऑफ द वे जाकर उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत खतरा मोल लेकर काम किया है। अब वो लोग भी तुम्हें ऑब्लाइज करना चाहते हैं। यूं भी उन लोगों को अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मलिक अख्तर ने कहा, यार कहीं मरवा न देना। ये फिक्रा उसने तमाम हुज्जत के लिए कहा था। मीनाक्षी ने अपना सारा बोझ उस पर लादते हुए कहा, अब तो जिएंगे भी इकट्ठे और मरेंगे भी इकट्ठे। मलिक अख्तर ने कहा, ठीक है, सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। उस पर दीवानगी तारी होने लगी। परवीन ने अगली शाम उससे दोस्तों की मुलाकात के लिए तय की थी। वो रात उसने मलिक अख्तर के फ्लैट पर ही बसर की। वो चाहती थी कि अगले रोज शाम तक मलिक अख्तर से साए की तरह चिमटी रहे। वो मलिक अख्तर को सोचने समझने का मौका भी नहीं देना चाहती थी। उसे यकीन था कि एक मर्तबा उसके दोस्तों से मलिक की मुलाकात हो जाएगी तो 5 घी में हो जाएंगी। उसके बाद मलिक अख्तर जिंदगी भर उसकी डुगडुगी पर बंदर की तरह नाचता रहेगा और कभी उसका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। रात को मलिक अख्तर को शराब और शबाब की ऐसी खुमारी चढ़ी कि वो सुबह देर गए तक सोता रहा। उसकी आंख खुली तो दिन जड़ाया था। बेचारे मलिक अख्तर को एहसास ही न हो सका कि परवीन के बड़े से हैंड बैग में मौजूद छोटे से कैमरे ने उसकी कितनी तस्वीरें आलम ख्वाब में उतार ली हैं। उसका कपड़ों से बेनियाज जिस्म बड़ी होशियारी से परवीन ने सेलुलाइड की फिल्म पर उतार लिया। बेड टी उसे परवीन ने ही बना कर दी। मलिक अख्तर ने अपने सरहाने रखी घड़ी पर नजरें जमाते हुए कहा, आज बहुत देर हो गई। परवीन ने आंख दबाते हुए कहा, हाँ ये काम ही ऐसा है, इसमें देर सवेर तो हो ही जाती है। खैर बैरे को नाश्ते के लिए कह दिया। उसने झिझकते हुए मलिक अख्तर से कहा, कौन सा बैरा? मैं किस लिए हूँ आपकी खादिम मलिक साहब। मलिक ने उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो भाई,
मीनाक्षी ने उसका जवाब एक खास अदा से मुस्कुराते हुए दिया और किचन में जा घुसी। मलिक अख्तर के लिए उसने मेज पर नाश्ता सजाते हुए इस बात को मलहूज़े खातिर रखा था कि आज उसे दफ्तर में कम से कम बैठने का मौका मिले और शाम की मुतवक्के मुलाकात से पहले वो अक्ल खिरत से बिल्कुल बेगाना रहे। मलिक अख्तर ने कहा, मेरे ख्याल से चंद मिनट के लिए दफ्तर में शक्ल दिखाऊं। परवीन ने उसके कंधे पर दबाव डालते हुए कहा, लेकिन सिर्फ चंद मिनट, दोपहर का खाना मैं आपके लिए खुद तैयार करूंगी। मलिक अख्तर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज बड़ी मेहरबान हो रही हो। वो बोली, क्या मतलब है आपका? आज से क्या मुराद है आपकी? मैं तो मलिक साहब पहले ही रोज से आपकी इताअत गुजार हूँ। मलिक ने खड़े होते हुए कहा, और मैं भी। अख्तर मलिक ने दफ्तर में वाकई अपनी शक्ल ही दिखाई थी। मामूल की मुख्तसर सी कार्रवाई और चंद फाइलों पर दस्तखत। 2-3 फोन अपने हेडक्वार्टर में किए, 3-4 पैगामात हेडक्वार्टर की तरफ से वसूल किए। उन पैगामात में मुख्तलिफ नौयत की फरमाइशें की गई थी। चूंकि ये फरमाइशें अफसरान आला की तरफ से हुई थी, इसलिए मलिक अख्तर के लिए ये हुक्म का दर्जा रखती थी। यूं भी उसने नौकरी का मतलब हमेशा आला अफसरान को खुश रखना ही समझा था। यही उसके बाप दादा की तरबियत थी जो उसके काम आ रही थी। घर पहुंचकर वो बेसाख्ता अपनी महबूबा से लिपट गया, जिसने अपना तन मन ही उस पर निछावर नहीं किया था। ऐसे असबाब मुहैया कर दिए थे कि अब उसकी सिफली ख्वाहिशात हकीकत का रूप धारने लगी थी। दोपहर का खाना दोनों ने इकट्ठा खाया। मीनाक्षी बड़ी मंझी हुई एजेंट थी। उसने बतौर खास मलिक अख्तर के फ्रिज से वाइन की बोतल निकाल कर मेज पर सजाई थी। उसका अंदाजे मेहमान नवाजी मलिक अख्तर के लिए जानलेवा होता जा रहा था। मीनाक्षी इस बुरी तरह उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत हुई थी कि अगर वो मलिक को उस लम्हे कान पकड़ने का हुक्म भी देती तो वो बिला चूंचरा उसके हुक्म की तामील करता। शाम तक वो साए की तरह मलिक अख्तर से चिमटी उसे जिनसी तस्कीन का सामान बहम पहुंचाती रही और अब दोनों शहर के मॉडर्न इलाके की तरफ जा रहे थे। कार मलिक अख्तर खुद ड्राइव कर रहा था। उसने अपने डिपार्टमेंट की बजाय प्राइवेट कार पर सफर मुनासिब समझा। मीनाक्षी बोली, उन लोगों ने होटल में खाने का एहतमाम किया था, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं जाना। मेरे ख्याल से हम यहाँ ज्यादा इत्मीनान से बात कर सकेंगे। मलिक अख्तर ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, बहुत मुनासिब फैसला था तुम्हारा। गाड़ी अब शहर के इंतहाई मॉडर्न इलाके में दाखिल हो रही थी और यहाँ के सबसे महंगे ब्लॉक के कोने में बनी कोठी के दरवाजे के सामने रुक गई। कोठी के दरवाजे पर मौजूद मुसल्लाह पहरेदार ने उनकी शक्ल पर नजर पड़ते ही दरवाजा खोल दिया। कार समेत दोनों अंदर चले गए। मलिक अख्तर के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म न हो सका कि जिस तरह उसकी एजेंसी ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने मेहमानों के लिए सेफ हाउस बना रखे हैं, ये भी उसी तरह का एक सेफ हाउस था जिसे तंजीम ने उस जैसे गधों को फांसने के लिए बतौर खास तैयार करवाया था। तंजीम के उस सेफ हाउस के हर कमरे में खुफिया कैमरों और रिकॉर्डिंग सिस्टम के जरिए वहां होने वाली गुफ्तगू और हरकत रिकॉर्ड कर ली जाती थी, जिन्हें फिर ये लोग मौका महल की मुनासिबत से अपने हक में इस्तेमाल किया करते थे। मलिक अख्तर वहां आने वाला पहला कुर्बानी का बकरा नहीं था। उससे पहले कई बकरे यहाँ ज़िबा हो चुके थे। बहुत से सरकारी अम्माल यहाँ आए और फिर तंजीम के बंदाए बेदाम बनकर रह गए। उन्हें गुफ्तगू के ऐसे जाल में उलझाया जाता कि मेहमान लूज टॉक पर मजबूर हो जाता। अगर वो उन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक फंसता भी नहीं था तो भी खुफिया कैमरे से तैयार करदा फिल्म की इस सफाई से एडिटिंग की जाती कि वो मुजरिम बनकर रह जाता और उन लोगों के अहकामात की तामील उस पर लाजिम हो जाती, इल्ला ये कि वो खुदकुशी कर ले। और ऐसे कई वाकयात हो भी चुके थे कि नादानिस्तगी में उन शैतानों के हाथों पसने वाले गैरतमंद और मुहिब वतन अफसरान ने बिलाखिर खुदकुशी को ही मुनासिब जाना था। उनमें इतनी हिम्मत भी न होती थी कि मरने से पहले वो अपने साथ गुजरने वाली उस कयामत का अहवाल ही अपने आला अफसरान तक पहुंचा जाएं। उन्हें मरते वक्त भी ये खौफ लाहक रहता था कि मुबादा ये मवाद उनकी नस्ल ही को बर्बाद करके न रख दे। शानदार और जदीद तरीन सामान आराइश से मुज़य्यन उस कोठी के पार्किंग एरिया में जिस शख्स ने उनका इस्तकबाल किया वो मकामी MPA परवेज भाई था। मलिक अख्तर ने उसका नाम तो सुन रखा था, लेकिन बिलमुशाफा मुलाकात आज पहली मर्तबा हुई। दोनों ने एक दूसरे से गर्म जोशी से मुसाफा किया और ड्राइंग रूम में आ गए। मलिक अख्तर को बतौर खास उस आरामदेह सोफे पर बिठाया गया था जिस पर बैठने वाले की मामूली हरकत भी कैमरे की आंख से महफूज नहीं रह सकती थी। कमरे में पहले से मौजूद मीनाक्षी के दोनों भाइयों ने परवेज भाई से भी ज्यादा गर्मजोशी दिखाई थी। मलिक अख्तर के बैठते ही परवेज भाई ने अपनी चर्ब ज़बानी के कमालात दिखाने शुरू किए और चंद मिनट की गुफ्तगू ही में मलिक अख्तर को भी खुलने पर मजबूर कर दिया। अगले ही लम्हे मीनाक्षी जैसी एक और खूबसूरत और नीम बरहना हर्राफा शराब की मुख्तलिफ बोतलों से सजी ट्रॉली घसीटती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने मलिक अख्तर को खास फर्शी सलाम किया। मलिक अख्तर से उसकी चॉइस पूछने की भी जहमत नहीं की गई। शायद मीनाक्षी ने उन्हें पहले ही समझा दिया था। अगले ही लम्हे वहां मौजूद तमाम लोगों के हाथों में शराब के जाम मुंतकिल हो चुके थे।
ये कॉकटेल बतौर खास तैयार की जाती थी और मलिक अख्तर को खास मेहमान की हैसियत में उस जाम से सरफराज किया गया था, जिसके चंद घूंट हलक में उतरते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। अगले ही लम्हे उसकी जबान कैंची की तरह चलने लगी। अव्वल तो उसके दिलो दिमाग में दूर दूर तक कहीं एहसास गुनाह या एहसास नदामत नहीं था, क्योंकि ज़मीर नाम की चिड़िया उसके वालिदे गिरामी की खुसूसी तरबियत के सबब उसके बदन को छोड़कर लड़कपन में ही उड़ गई थी। अगर कोई ऐसी खलिश दूर दूर तक थी भी तो अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। परवेज भाई ने सिलसिला गुफ्तगू मतलब की तरफ लाते हुए उसके महकमे के 2-3 आला अफसरों के नाम ले दिए। बोला, मलिक साहब, इस हम्माम में सब नंगे हैं, इन लोगों को कौन नहीं जानता, आपसे ज्यादा बाखबर कौन है, लेकिन आपने देखा कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। अरे भाई क्यों करेंगे, यहाँ हर शख्स जरूरतमंद है। जिंदगी ने और सबसे बढ़कर हालात ने हमारे लिए इतने बेशुमार मसाइल पैदा कर दिए हैं कि हम में से किसी के लिए भी जिंदगी आसान नहीं रह गई। एक लम्हे के लिए रुककर उसने घाक कसाईयों की तरह बकरे की तरफ देखा और मुतमईन होकर खुद ही गर्दन हिला दी। इस दरमियान मलिक अख्तर के लिए दूसरा पैग तैयार हो चुका था। परवेज बोला, मलिक साहब, हम सियासी लोग हैं, इस शहर में अपने तहफ्फुज़ के लिए हमें भी हर वक्त गोला बारूद की जरूरत रहती है। आप तो जानते हैं कि हमारे दुश्मन और दोस्त दोनों तरफ बारूद की जबान समझते हैं और उसी में गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। अगर हम सिर्फ अमनाश्ती का प्रचार करते रहें तो ये अपने हाथों अपनी सियासी कब्र खोदने वाली बात होगी। मलिक हमतन गोश था। परवेज भाई ने घूंट हलक में उतारते हुए कहा, हमारा काम तो जैसा तैसा चल ही रहा है। इस शहर में तो किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि हमारे माल को छू कर देखे, लेकिन आप जानते हैं कि एंट्री पोर्ट्स पर कोई एक एजेंसी तो है नहीं कि जिससे डील कर ली जाए। कई एजेंसियों ने अपने डेस्क सजा रखे हैं, उनमें आपके लोग बतौर खास ज्यादा सरगर्म हैं। हमने हर एक से उसकी हैसियत के मुताबिक सुलूक को अपनी रिवायत बना रखा है। आपके लोग भी हमारे साथ ताउन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम इस सिलसिले में बराह रास्त आपसे मामलात करना चाहते हैं। आपने जिस तरह परवीन के दोस्त की हैसियत से हमारे साथियों की मदद की है, उसने हमें तो बहुत मुतासिर किया है। अब हम भी कोई ऐसे गए गुजरे नहीं कि अपने दोस्तों का ख्याल न रखें, इसलिए आज से आपकी और हमारी जारी पक्की। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि मीनाक्षी के भाइयों में से एक ने अपने पहलू में रखा ब्रीफ केस परवेज भाई की तरफ बढ़ा दिया, जिसने ब्रीफ केस खोलकर मलिक अख्तर की तरफ बढ़ा दिया। 10 लाख, हमारी दोस्ती की पहली किस्त। उसने ब्रीफ केस मलिक अख्तर की आंखों के सामने धरी मेज पर रख दिया, जिसमें मौजूदा नोटों पर नजर पड़ते ही अख्तर मलिक की राल टपकने लगी। उसने नदीदे बच्चों की तरह ब्रीफ केस की तरफ हाथ बढ़ाए। शुक्रिया। परवेज बोला, मलिक साहब, आपको कुछ नहीं करना, बस हमारी तरफ से आंखें बंद रखनी है। हम आपको सिर्फ एक बात का यकीन दिलाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हंगामी सूरत हाल बन गई तो हमारे कारकुन मर जाएंगे, लेकिन आपके खिलाफ उनकी जबान कोई नहीं खुलवा सकता। हम अपने दोस्तों को कभी आजमाइश में नहीं डालते, लेकिन उनसे ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि मुसीबत के वक्त वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे और सिर्फ हमारी मदद को आएंगे। जहां आपकी इज्जत का सवाल होगा वहां हम माल की परवाह करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी और आपकी इज्जत भी सांझी होनी चाहिए। परवेज भाई ने सिगरेट सुलगाकर उसके धुएं के मरगूले बनाए। मलिक अख्तर ने अपनी चोंच खोली। बोला, परवेज भाई, आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे, सिर्फ राजदारी शर्त है। इस मर्तबा दोनों भाइयों में से एक ने कहा, मलिक साहब, इस बात का एहसास हमसे ज्यादा और किसको होगा, सिवाय हम दोनों के या फिर परवेज भाई के। कोई और कभी भी आपको फोन नहीं करेगा, ना अपनी शक्ल दिखाएगा, बल्कि हम भी परवीन को दरमियानी राब्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे बस। परवीन ने कहा, लेकिन मैं अपना हिस्सा बराबर लूंगी भाईजान। उसकी बात पर तमाम शैतान खिलखिलाकर हंस दिए। मलिक अख्तर ने उसकी तरफ हवसनाक नजरों से देखते हुए कहा, क्यों नहीं, सब आपका ही तो है। रात का खाना उन्होंने वहीं खाया था। इस दरमियान परवेज भाई ने उसे समझा दिया कि उनका कोड नाम क्या होगा और उनके अलावा कौन उनसे राब्ता कर सकता है। उन्होंने इस मुलाकात में मुल्क के एक साहिली इलाके की निशानदही करते हुए मलिक अख्तर से कहा था कि वहां तीसरे रोज रात गए एक लॉन्च आएगी और वो अपने मुलाजमीन को मौका वारदात से हटा ले ताकि ये दरिंदे आसानी से अपना काम कर लें। मलिक अख्तर ने सरे तस्लीम खम कर दिया था। वो रात भी मीनाक्षी ने मलिक अख्तर के साथ गुजारी। इस दरमियान उसने मलिक अख्तर को अगली जिंदगी के ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए थे कि अब उसकी तरफ से मामूली मज़ाहमत की तवक्को भी खत्म हो चुकी थी। उसने मलिक अख्तर से कहा था कि दुनिया के जिस मुल्क में और जिस करेंसी में भी वो चाहे ये लोग अदायगी कर देंगे। उसने मलिक अख्तर को मशवरा दिया था कि अब वो फौरी तौर पर किसी गैर मुल्क में अपना अकाउंट खोले और रकम भी उसी बैंक में जमा करवाया करे। इस तजवीज को मलिक अख्तर ने दिलो जान से पसंद किया था और अब उसे यकीन हो चला था कि परवीन से ज्यादा वफाशार औरत रूए जमीन पर उसके बाद शायद कभी दिखाई न दे। वो उसके एक इशारे पर गर्दन कटवाने को भी तैयार नजर आने लगा। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।